ایک بندہ روٹی کا لقمہ توڑے گا, توڑنے کے بعد وہ لقمہ اپنے منہ میں داخل بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت اپنے عروج اور اپنے کمال کے ساتھ آ پہنچے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, آپ کے والدین, آپ کی آل, آپ کی اولاد, آپ کی ازواج, جمی مسلمین بالخصوص الطاف بھائی کے والد صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمانا, ان کی بے حساب فرمانا, ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمانا, قبر پر اپنی رحمت اور رضوان کی بارش نازل فرمانا. بچوں کو صبح صبح رلا کے نہ بھیجا کر, خوش بھیجا کر. ان کو خوش جائیں گے تو اچھا پیپر کریں گے, اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اگر وہ رو کے جائیں گے تو پھر سارا دن پریشان رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے. جہاں بھی رہے خوش رہے, بات رہے, پھولوں کی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. آج کا لوگ ہمارا, آج ہم جا رہے ہیں جی اپنا الطاف بھائی کے ابو کی ختم قربانی پہ. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور کے درجات بلند فرمائے. آپ سب بہن بھائیوں ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو اپنا بلاگ اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو چلتے اپنے بلاگ کی طرف. تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے. چلتے ہیں بلاگ کی طرف. الحمدللہ جی, صبح ہو چکی ہے. تو میں آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں دکان پہ جانے سے. تو ابھی میں دکان پہ جا رہا ہوں. پہلے اعلان کرنا ہے میں نے الطاف بھائی کے ابو کے ختم قربانی کا مسجد میں اعلان کروں گا, اور اس کے بعد پھر میں دکان پہ جاؤں گا. تو جیکٹ بھی آج میں نے چینج کر لی ہے, کیونکہ وہ جیکٹ میری باریک ہے بہت, تو وہ سردی نہیں کور کرتی. تو یہ بہت پرانے عرصے کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ جی کچھ اس سے موٹی ہے تو پھٹی پرانی کہیں کہیں سے, پر ہے اس سے موٹی, اچھی خاصی گرم ہے یہ ماشاءاللہ. مسجد میں اعلان میں نے کر دیا ہے. اب دکان پہ جا رہا ہوں. 7 بج گئے, پورے 7:02 ہو گئے. تو اب میں دکان پہ جا رہا ہوں. جی پانی وغیرہ میں نے چھڑکا لیا ہے. بھائی ذیشان موٹر چلاتا ہے نا ادھر سے, تو پھر پانی چھڑکا لیتے ہیں یہاں. تو صفائی وغیرہ بھی ادھر ہو گئی ہے, سامان وغیرہ باہر نکال لیا ہے. اب بیٹھتے ہیں یہاں. آج ہی حماد اور ریحان دکان پہ نہیں آئے, انہوں نے ناشتہ کر کے اسکول چلے جانا تھا. تو آج ہی میں بنا رہا ہوں ناشتہ. تو روٹی بھی میں ہی بنا رہا ہوں, بس مما نا میں اوپر توے کے اوپر رکھی جا رہا ہوں, تو مما اس کو نا پکا رہی ہے. تو چائے میں نے بنائی ہے, یہ دیکھیں ابھی نا ابال آ رہا ہے آگے اس کو. تو باقی سب کام نا مما کر رہی ہے. یہ پراٹھے بنا رہی ہے مما, سب میں نے اوپر ڈال دی ہے. یہ پیڑا بنا کر ایسا بنا کر ادھر. اچھا اچھا جی. تو ہم جی صبح کا ناشتہ کرنے لگے ہیں. مما ناشتہ بنا رہی ہے, تو ہم ناشتہ کر کے دکان پہ چلے جائیں گے. ریحان لیٹا ہوا ہے. دکان پہ نہیں جائیں گے آج. اچھا تو جی انہیں بچوں کو ناشتہ بنا کے دے رہی ہوں. ادھر کلکڑی پہ جانا ہے. الطاف بھائی کی والد کی بابے کی کلکڑی ہے, تو جانا ہے ادھر. تو سب ابھی کہہ رہی تھی جلدی آ جانا کہ قرآن شریف پڑھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بچوں کو ناشتہ بنا کے دوں گی اور بچے اسکول جائیں گے. تو میں اور صاحب ادھر چلے جائیں گے کلکڑی پہ. ہاں جی جی. جلدی جلدی صبح ٹائم پہ اٹھی تھی, تو جلدی ناشتہ بنا رہی ہوں آج, کیونکہ 8 بجے ہم نے ادھر جانا ہے. تو منال بھی اسکول کی تیاری کر رہی ہے, بڑی کپڑے استری کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, خود ہی کپڑے استری کر رہی ہے. خود ہی تو آپ کہتے تھے جب میرے ہم ہاتھ اٹھا تھا نا, تو یہ کہتا تھا میں خود ہی, جو کوئی کام ہوتا تھا میں خود ہی کر لوں گا, آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو میرے ابو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اس کو, اس نے اس کا نام ہی خود ہی رکھ دیا تھا, میں خود ہی. تو جب میرے ابو کہتے تھے نا وہ کہاں میں خود ہی, تو میں سمجھ آتی تھی یہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے. تو میں کہہ رہی تھی ابو پتہ کہاں پہ گیا ہوا ہے, پیچھے ہٹ جائے تو ناشتہ کرے, پچھاڑی چٹائی. آج میرے دونوں شہزادے دکان پہ نہیں آئے, کیونکہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نہ آنا, کیونکہ میں نے 8 بجے گھر آ جانا ہے دکان بند کر کے. اب 8:30 ہو چکے ہیں. ناشتہ کروں گا, ناشتہ کر کے پھر قربانی پہ جائیں گے. میں بھی جاؤں گا, بیگم بھی جائے گی, اور بچے جائیں گے اسکول. ان کے پیپر ہو رہے ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سسمائی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو گھر سے کال آئی ہے کہ آ جائیں, ناشتہ وغیرہ کر لیں پھر چلیں. تو میں اب دکان بند کرنے لگا ہوں. آج ہی حماد اور ریحان دکان پہ نہیں آئے, انہوں نے ناشتہ کر کے اسکول چلے جانا تھا. تو بچے اسکول چل گئے, تو میں نے ادھر مرغی چھوڑی ہوئی ہیں, مرغی ادھر پھر رہی ہیں دیکھیں. تو میں نے کہا ان کو پہلے دانا وغیرہ کھلا دوں, تو پھر ان کو اندر بند کر کے جاؤں گی, کہ گھر میں آپ ہی اکیلی ہوگی, تو پھر آپ ہی کیسے ان کو چھوڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو صاحب بھی آ گئے ہیں. آ گیا ہوں جی. آپ نے تیاری کر بھی لی ہے؟ کہاں تیاری کی ہے ابھی, تو میں نے مرغی چھوڑی ہیں, ان کو ڈربے وغیرہ صاف کیے. میں نے کہا پھر آپ ہی کیا کرے گی. ناشتہ تیار ہے؟ ہاں جی.
चलिए नाश्ता दें, पहले मैं हाथ मुँह धो लूँ। जो मर्जी कर ले, जल्दी करें। तो साहब इधर हाथ मुंह धो रहे हैं तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा अभी मुर्गे को बंद करना है, तो फिर मैं ना भी नाश्ता किया नहीं, चाय नहीं पी मैंने, चाय भी पीनी है अभी मैंने। अच्छा जी, आपने कर लिया नाश्ता? नहीं, मैंने चाय पीनी है बस चाय पीनी है। रोटी थोड़ी सी माथू रह गया, दिमाग खराब करती है सुबह सुबह। एक तो तेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है यार। अपने दिमाग के ना स्क्रू पेज जो वगैरह वो टाइट रखा कर, इसको खराब ना होने दिया कर, ढीला ना होने दिया कर इनको। ऐसा ना हो कि कभी मुझे टाइट करने पड़ जाए तुम्हारे दिमाग के स्क्रू पेज। बच्चों को सुबह सुबह रुला के ना भेजा कर, खुश भेजा कर उनको। खुश जाएंगे तो अच्छा पेपर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर वो रो के जाएंगे तो फिर सारा दिन परेशान रहेंगे। आदत नहीं है, कोशिश किया कर उनका मूड अच्छा रहे। उसको सुबह सुबह झिड़का ना कर उनको सारा दिन परेशान रहेंगे। शाम को आना रोटी खा तो चलिए देर होती अच्छा हुई जी। है। तो जी मैंने तैयारी शारी कर ली है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, बेगम अभी तैयारी कर रही है, तो अभी निकलने लगे घर से। बेगम आ जाओ यार, कितनी देर है? 9 बज चुके हैं, 9 बज गए, आ जाए यार। हाँ जी जल्दी करें, हमने तैयारी कर ली है, भाभी को बुलाएं तो फिर चलें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे, यसअलूना का अनिस्सा, या रसूलल्लाह आप हमें यह बताएं क़यामत कब आएगी। इस सवाल का जवाब देते हुए खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, ला तातीकुम इल्ला बग़ता, फरमाया महबूब अपने ग़ुलामों को बता दीजिए, जो भी क़यामत का सवाल करता है उसे ख़बरदार कर दीजिए कि क़यामत आएगी ज़रूर, मगर वो बिल्कुल अचानक आएगी, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और क़यामत जो है वो अपने मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। अब क़यामत कितनी जल्दी आएगी इसका अंदाज़ा हम इन 2 अहादीस तय्यबा से लगा सकते हैं। यार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा रोटी का लुकमा तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वो लुकमा अपने मुंह में दाखिल भी नहीं कर पाएगा कि क़यामत अपने उरूज और अपने कमाल के साथ आ पहुंचेगी। दूसरी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, 2 बंदे कपड़े की आपस में खरीदारी कर रहे होंगे, एक बेच रहा होगा, दूसरा ले रहा होगा, अभी कपड़े को काटा भी ना गया होगा कि अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा फरमा देगा। यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब इंसान क़यामत से बिल्कुल गाफिल होगा, इंसान के वहमो गुमान में भी ये तसव्वुर नहीं होगा कि इस वक्त क़यामत आ जानी है। अल्लाह ताला ने ये जो क़यामत को अचानक रखा है इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, वरना अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहता या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो क़यामत का लोगों को बताया जा सकता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी से बड़ी निशानी भी अपनी उम्मत को बताई, छोटी से छोटी निशानी भी उम्मत को बताई, दिन भी बताया, जो महीना था वो भी बताया, सिर्फ वक्त और लम्हे को छुपाया गया कि किस सन में आएगी ये नहीं इरशाद फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला ने इसका इल्म हुजूर को दिया था। जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारका है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत, जब मैंने अपने रब का दीदार किया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा। सरकार फरमाते हैं, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में था मैंने उसे भी जान लिया, जो कुछ ज़मीनों में पुशीदा था मैंने उसे भी जान लिया। इसलिए इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें ये इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या हो तुमसे निहा भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी ये कायनात के जितने भी उयूब हैं, ये तो गुयूब हैं, ये सारे के सारे बहुत छोटे गैब हैं। सबसे ज़्यादा गैब जो ज़ात है वो खुदा की है। जब खुदा ही ना छुपा तो और कोई ज़ात मुस्तफ़ा की निगाह से कैसे पुशीदा रह सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने क़यामत इसलिए बिल्कुल अचानक रखी ताकि इंसान हर लम्हे क़यामत की तैयारी करता रहे। अगर हम गौर करें तो हमारी दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ का दर्स देती हैं कि इंसान हर चीज़ की एक इब्तिदा होती है, बिला आखिर वो अपनी इंतहा को पहुँच जाती है,
तेरी भी एक इब्तिदा है, उसके बाद तूने अपनी इंतहा को पहुंच जाना है। दरख्त होता है, घर में छोटा बीज लगाते हैं, तना हुआ दरख्त बनता है, वक्त आता है ख़त्म हो जाता है। दिगर कई चीज़ें हैं, अगर हम गौर करें हर चीज़ की यही हालत है। वजूद नहीं था, वजूद मिला, ख़त्म हो गया। यही हालत इंसान की है। अल्लाह ने इसे वजूद दिया, फिर एक वक्त आएगा इसके वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का साथ ताज खुदा ने इसके सर पर सजाया। पूरी दुनिया की मखलूक़ात जो है, जो खाती पीती है, जंगल का बादशाह शेर होने के बावजूद भी उसे लुकमे के आगे सर झुकाना पड़ता है, अपने मुंह को लुकमे के पास लेकर जाता है, फिर खाता है। अल्लाह ने इंसान को ये इज्जत दी, फरमाया इंसान हम तुझे 2 नौकर दे देंगे, ये हाथ तेरे नौकरों जैसा काम करेंगे, तूने लुकमा इनसे तोड़ना है, अपने मुंह में डाल लेना है। तेरा सर किसी गैर के आगे नहीं झुकना चाहिए, तेरा सर सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे झुकना चाहिए। इसलिए इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे इंसान गिरा समझता है, हजारों सजदों से इंसान को निजात देता है। आज अगर इंसान अपने रब का नाफरमान बन जाए तो हर बंदे को उसे सलूट और सलाम करना पड़ता है, और अगर वो खुदा का महबूब और पसंदीदा बंदा बन जाए तो अल्लाह ताला सारी मखलूक को उसके कदमों में डाल देता है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया था, अल्लाह को राजी करने वालों में कामों में लगा दिया था, तो अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक को ये शान अता फरमाई थी। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान का खरतली नला हुक्म इत्तिसाली, फरमाया ये खुदा के सारे शहरों को मैं अब्दुल कादिर ऐसे देखता हूँ जैसे तुम अपनी हथेली पर किसी राई के दाने को देखते हो। एक सहाबिया रसूल थे, जंगल में जा रहे थे, शेर ने हमला करना चाहा। अब जाहिर बात है कि शेर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, अगर हमारे सामने कोई कुत्ता आ जाए, हमारे पीछे लग जाए तो हमारी हालत गैर हो जाती है। अब वो जंगल का शेर था, सहाबिया रसूल भी अकेले थे, लेकिन अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी वाले काम किए थे। शेर से भागे नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि शेर जब करीब आया तो सहाबिया रसूल ने इरशाद फरमाया, शेर आना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम और रसूलुल्लाह का नौकर हूँ। जब शेर ने यह सुना फौरन अपनी गर्दन को झुका दिया। पहले वो शेर खाने के लिए भाग रहा था, लेकिन जब सहाबी ने अपना तारुफ रसूलुल्लाह की निस्बत के साथ करवाया तो वही शेर नौकरों की तरह उस सहाबिया रसूल के सामने आगे आगे चल रहा था, गर्दन झुकाए हुए, और जंगल से बाहर उनको पहुंचा कर आ जाता है। तो मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, ये अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी का इंसान को फ़ायदा मिलता है कि अगर इंसान अल्लाह को नाराज़ कर लेगा तो न दुनिया में इज्जत होगी, न आखिरत में उसे मकाम व मर्तबा मिलेगा, और अगर खुदा को राज़ी कर लिया दुनिया में भी उसके वारे नियारे होंगे और क़यामत के दिन भी खुदा उसे जन्नत अता फरमाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कई फितनों से हमें आगाह फरमाया था, उनमें से सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ और उसी के मुतालिक तो हदीस मुबारक अर्ज़ करके अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। एक हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी की, हुजूर ने क़यामत के कई फितने गिनवाए। पहले नंबर पर इरशाद फरमाया, ज़कात को माल टैक्स समझा जाएगा। आज हमारे यहाँ देख लें, ज़कात देनी पड़े, अल्लाह की राह में खर्च करना पड़े तो इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा गिरा गुजरता है। फजूल खर्चियों में खर्च करना पड़े तो वह इसकी कोई परवाह नहीं करता, हज़ारों क्या लाखों भी लगा दे तो बिल्कुल उसे फिक्र नहीं होती। दूसरा नंबर पर इरशाद फरमाया, इंसान ये भूल जाएगा कि वो हलाल कमा रहा है या हराम, उसका मकसद सिर्फ पैसा होगा, पैसे की वजह से वो ये परवाह ही नहीं करेगा मैं जो कमा रहा हूँ वो हलाल है कि हराम। और आज हम देख लें, यह निशानी भी हमें पूरी नज़र होती आ रही है। रिश्वत, सूद, जुआ, दिगर हराम के ज़रियों से माल कमाना यह इंसान के अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो चुका है। हालांकि रिज़्क़ हलाल ऐसी चीज़ है, आज हम में से कई बंदे बाज़ औक़ात हो सकता है परेशान होते हों कि यार हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ज़रूरी नहीं है जिसकी दुआ कबूल ना होती उसमें यही वजह हो, लेकिन बहरहाल दुआ कबूल ना होने का एक सबब हदीस तय्यबा में यह इरशाद फरमाया गया, इंसान जो माल कमाता है वो माल माले हराम होता है, जिसकी वजह से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। तीसरा नंबर पर इरशाद फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों की इज्जत ज़्यादा होगी, माँ बाप की इज्जत कम होगी। और इसी हदीस के आखिर में इरशाद फरमाया, बाद वाले पहले वालों को बुरा भला कहेंगे, उन पर लान तान करेंगे। आज अगर हम देख लें तो तकरीबन ये ज़माना
आ चुका है। कोई उठता है तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर एतराज शुरू कर देता है, कोई उठता है अहले बैत अतहार के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, कोई उठता है तो अल्लाह के औलिया के बारे में बोलना शुरू कर देता है कि बाबे तो शाही कोई नहीं है। हालांकि ये लोग जो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, अपनी नापाक जुबान से सहाबा के दामन पर एतराज कर रहे हैं, ये इंसान नहीं बल्कि इंसानों के रूप में हमारे सामने क़यामत की चलती फिरती निशानियाँ हैं। क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि क़यामत की निशानी ये होगी कि बाद वालों को अपने ईमान की फिक्र नहीं होगी, अपने करतूत वो भूल जाएंगे और पहले वालों पर कलाम करेंगे, उनके बारे में बुरा भला कहेंगे। और हुजूर ने फरमाया था जब ऐसा ज़माना आ जाए तो उन लोगों से तुमने दूर रहना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्ब क़यामत फितनों का ज़हूर होगा, फितने आएंगे, इतने फितने उठेंगे कि इंसान सुबह को अगर मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह तक काफिर हो जाएगा। पूछा गया या रसूलल्लाह इन फितनों के दौर में हम करें तो क्या करें? हुजूर ने इरशाद फरमाया उस वक्त फितनों से बचने वाला वो शख्स होगा जो 4 बकरियां ले पहाड़ों की तरफ चला जाए, उन्हीं का दूध पीकर वो अपने खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। उलमा ने इस हदीस मुबारका की तशरीह बयान की है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जंगलों में चला जाए, इसका मतलब ये है कि इंसान हर ऐसी सोहबत, हर ऐसे बंदे से दूर रहे जो उसके ईमान पर डाका डालने का सबब बन सके। और आज हमें ये ज़हन दे दिया गया सुनो सबकी जी करो अपनी। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं, वो जो सुन्नी सबकी चाहिए हम अपने दिल की करते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं सबकी नहीं सुन्नी, बल्कि जो ऐसे वैसे लोग हैं जो तुम्हारे ईमान पर डाका डालने वाले हैं उनसे दूर रहना है। जबकि हमारा ये ज़हन बना दिया गया नहीं जी मोबाइल में जो भी आ जाए उसकी सुन लो, जो भी पढ़ लो उसको शेयर कर दो। यही वो चीज़ है जिसने आज नौजवानों को इतना जरी कर दिया है। ना वो माँ बाप के मकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हैं, ना असातिज़ा का अदब व एहतराम करते हैं, ना उलमा की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही बल्कि ये तीनों तबकात तो एक तरफ रह गए, बल्कि औलिया अल्लाह और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में भी वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, इस तमाम मौजू को अर्ज़ करने का मकसद ये है कि क़यामत की निशानियों में से बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो रहती हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन उससे कबल मौत है जो किसी भी वक्त हमें आ सकती है। तो लिहाजा हमें अपना ताल्लुक़ उलमा अहले सुन्नत के साथ रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं, रिज़्क़ की परवाह नहीं की जाएगी, हमें हलाल रिज़्क़ कमाना चाहिए, गाने बाजों से बचना चाहिए, वालिदैन का अदब व एहतराम करना चाहिए और जितने भी औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अहले बैत अतहार हैं सबके साथ अकीदत मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फितनों के दौर में भी अगर हम इन सहाबा इकराम अहले बैत अतहार औलिया के दामन के साथ वाबस्ता रहेंगे तो हमारा ईमान भी महफूज रहेगा और क़यामत में भी अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ जो चंद कलिमात कहे मौला कुद्दूस अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। या रब्बिल आलमीन का मालिक अल्लाह तिलावत कुरान पाक का करना, दर्स व बयां का देना सुनना, 10 कुरान पाक, 1 लाख दुरूद पाक, इसके अलावा भी जो कुछ पर्ची पर मज़कूर है मरहूम के लिए पढ़ा गया सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। दौरान तिलावत दौरान ज़िक्र जो गलती कुताही हुई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से माफ़ फरमाना। इस सब का सवाब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन मोहब्बतन आजज़ाना
गुलामाना तौर पर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, आपके वालिदैन, आपकी आल, आपकी औलाद, आपकी अज़वाज, जमी मुस्लिमीन बिलखुसूस अल्ताफ़ भाई के वालिद साहब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाना। उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना, उनके कब्र की मनाजिल को आसान फरमाना, कब्र पर अपनी रहमत और रिज़वान की बारिश नाजिल फरमाना, कफन को जन्नती कफन से तब्दील फरमाना, कब्र को हद नज़र तक वुसअत अता फरमाना। ऐ मालिक व मौला, दुनिया में रहकर जो नेक अमाल किए उन्हें उनके लिए ज़रिया निजात, बतकाज़ा बशरियत जो गलतियाँ खुदाइयाँ हुई उनसे अफ़्व दर गुज़र फरमाना। ऐ मालिक व मौला, अहले खाना को सब्र की तौफीक, सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाना। ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करके अपने मरहुमीन को इसाला सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाना। मालिक व मौला, हम सब के भी जितने रिश्तेदार अकाबिर इस दुनिया से चले गए सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना। हम सब को भी कब्र और हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैति अजमाइन। रब्बिल आलमीन, मालिक व मौला, उनके वालिद साहब के जाने के बाद जो उनकी ज़िम्मेदारियों के दस्तार थी इन के सरों पर सजाई गई, इनको वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक अता फरमाना। मालिक व मौला, उसमें जो रुकावटें हों उनको अपने फजल व करम से दूर फरमाना। नेक कामों पर अपने वालिद साहब के जो काम थे उनको जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाना। वालिद साहब के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखने की तौफीक अता फरमाना। आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाना। घर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाना। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मोहम्मद। असलम भाई और उनके मामू खाना खा रहे हैं। असलम भाई, और कुछ चाहिए? लेके आऊँ चावल? नहीं, बात जदा करना भाई, आए आप भी खाएं। हमने खा लिए हैं, आप खाएं। तो कोलखानी का ख़त्म शरीफ ख़त्म हो गया जी, ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से अब घर वापस जा रहा हूँ, दुकान खोलूँगा जाके घर से होकर। दुकान के बाद फिर मैं कोलखानी के ख़त्म से होकर मैं आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ अब वापस। घर से होकर फिर मैं दुकान पे जाऊँगा, दुकान खोलूँगा जाके। तो आज सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। 11 बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हुआ। तो फिर उधर खाना वगैरह खिलाते काफ़ी टाइम हो गया। अभी मैं घर जा रहा हूँ। आज ही मैंने सुबह 8 बजे मुर्गियाँ छोड़ ली हैं, क्योंकि हमने कुलखानी पे जाना है। तो मैंने कहा छोड़ के इनको दाना वगैरह खिला दूँ। तो मैं जी अब घर से फिर वापस जा रहा हूँ। 11:30 हो गया, 11:20 पे मैं घर पहुँचा। तो पानी शानी पिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ इधर। मनाहिल मैडम अपना ये रैन क्या कर रही है? रैन गाड़ी दो मुझे। कोलखानी से हो के आ गए तो मैंने आके दोबारा दुकान खोल ली है। 11 बज के तकरीबन 40 मिनट हो गए दुकान खोल के बैठा हूँ। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है कि इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।